Assam on the implementation of the Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign. I will take a very brief presentation, about 10 minutes, and then Sridham Vedreji, who is the advisor to the Minister on technical matters, will also make a presentation on the scientific planning. Am I audible? Am I audible? Yes, sir, audible, sir. Oh, okay, fine. Okay. So the presentation, I'm starting the presentation. You are audible, but I think there is a lot noise, so your voice is not so clear. So let's everybody may please mute yourself. No, okay. Okay. Others kindly mute your mic so that people can listen. So, okay, we'll start with the presentation now. I welcome the state nodal officers of Madhya Pradesh and Assam to the event. Okay, this is the. Okay. Welcome to this state nodal officers and DMs of Madhya Pradesh and Deputy Commissioner of Assam. So this is a very familiar scene in many places where when the rain comes, there are a lot of rain comes and you have a lot of urban flooding. And they say this is a picture of Delhi where bus is totally submerged in rainwater, and then summer mein aata hai ki you have drinking water problem. So this happens, a cycle of rainfall, floods, damages, then comes drought, then tankers come, farmer suicide. This cycle keeps on continuing. And it happens 4 months of the month you have rainfall and 8 months you have this type of issues. No, our idea was to why not we link this to this. That is the water, excess water in the rainy days to be stored for the future use in summer. So this is what the Catch the Rain campaign is all about, which is launched by the Honorable Prime Minister on 2nd March by addressing all sarpanchas. He also interacted with 5 sarpanchas of 5 different states. And the sarpanchas, many of you are aware, held special Gram Sabhas to discuss the theme and also did Jal Shapath. So as a continuity of this, we will insist that on November 30th, when the campaign or rainfall ends, we will have a Gram Sabha. So kindly note this point, we will have a Gram Sabha on November 13th in all over the country, basically focusing on the rainwater harvesting structures and the water related activities we have done in the last 3-4 months, and also to make people more conscious about the necessity of the water. So this will be one point which all of you should ensure that on November 13th we will have a Gram Sabha discussing on the water related issues. PM also had written a letter to all sarpanchas for the involvement, and he also wrote letter to the chief ministers. So this is the launch of the campaign. This is a letter Honorable PM had written to the sarpanchas. This is a letter he had sent to the CMs. Okay, in the Mann Ki Baat also he had been repeatedly telling about the necessity of the campaign, and the mantra is catch the rain where it falls, when it falls, which is a decentralized storage of water. Now, this has been a continuation of the earlier Jal Shakti Abhiyan in 2019, where 1,592 blocks were taken up. In this today's meeting, we had Assam, in which only 5 blocks in one district was taken up in Assam, and 29 blocks in 11 districts were taken up in Madhya Pradesh. So teams from Government of India had come to these blocks in July to September. But this Jal Shakti Abhiyan, Catch the Rain campaign covers all rural areas, all urban areas, and all districts of the country. This is basically from 22nd March to 30th November. That is the rainy season period. So okay. Now, what is the mantra of Catch the Rain campaign is to nudge stakeholders to create appropriate rainwater harvesting structures suitable to the climatic and soil conditions with active people's participation. And the theme is Catch the Rain where it falls, when it falls. Basically, it is a decentralized storage of water. Another way of putting it up is not a drop from a compound, or घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, और गांव का पानी गांव में. So main objective, there are 5 major objectives. Harvesting maximum rainwater and saving it is the first and most important thing. Second thing is creating an inventory of all the water harvesting structures, enumerating, geotagging, and making an inventory of the water bodies and the rainwater harvesting structures, preparing a scientific plan for the rainwater harvesting structures, and setting up of Jal Shakti Kendras in all districts, and
creating awareness for and ensuring people's participation. These were the 5 major objectives. Then, of course, there is tree plantation and Gram Sabha and the farmers training programs also associated with this going on. So some of the meetings which we had done earlier with Chief Secretaries and all was done to this. And this is with all your help and coordination. This is the achievement from Manrega alone. Almost 46,000 crore worth work has been done so far. And if you notice, nearly 31 lakh structures have been constructed in urban and rural areas. So this time you'll notice, unlike the previous campaign, we also focus on the urban areas also. But there is a problem here because many information of the urban areas are not coming. So I'll come to that later. So thanks for your cooperation, all the DMs and the SNOs. We have taken up this much of work here. So I'll go the step by step. First of the campaign goal is to have rainwater harvesting structures. And why catch the rain? As because there's a lot of rain available which can be stored. This is a classic case of Japan, where they have built underground reservoirs, but it's very costly, but we don't do that. We will be looking only at our underground aquifers and the surface waters. So this is all everybody knows about it, so I'll go in very fast. It also reduces urban flooding, it also reduces the water table, and we are looking at a tanker-mukh towns in this summer, if we can store this water. So what are the activities we propose? Rooftop rainwater harvesting structures, water harvesting pits and compounds, checking and repairing of the existing rainwater harvesting structures. This is a very important point. So now that some monsoon is almost halfway through, and a lot of you have floods, so I'm not looking into a lot of things which should have been very important in the beginning of the campaign. Desilting of tanks to reduce increase the storage capacity, repairs to step wells. These are all supposed the activities which we had proposed under the campaign. So we had asked these things to be done by the district administration. One, to ensure rooftop rainwater harvesting structures in all government buildings. Many of you would have done that, but if you are not done, kindly do that now, because PMO is also looking at probably how many structures, how many school buildings, how many PSC centers, how many Anganwadi Kendras newly constructed have rooftop rainwater harvesting. That's be getting compiled. So please see that it is done. Money is available under the Manrega. So there's no restriction on the money. Money is available and is permitted activity under the Manrega. So identify rooftop rainwater structures which require maintenance and do the maintenance. And then rejuvenation of streams and rivers, then revival of wetlands, and removal of encroachment from flood bank areas and water bodies and channels. These are some of the activities which we had requested. And the second important point is preparing the inventory of water bodies and the preparation of scientific water conservation plans. This is for the future inventory of water bodies based on the old revenue records, and with the help of remote sensing images from NRSA and GIS, you please mark the boundaries and get the image in the GIS form in our digital map. Mark the boundaries, GIS tag them, and update in the portal. This is very important. Update in the portal. I'll come to that. Our portal has an option to update information from the ground level. We are populating as much data as available from our side, but there is an element of some part missing, so that you can update it. So the preparation of water scientific plans, advisor. Okay. We have actually asked the DMs to send the bank account numbers. Some of them you have sent, some of you have not sent it. Out of 706, we have got about 420 districts have sent. If you have not sent it, please send the information of your bank accounts so that we can transfer money to you. This is basically to help you in preparing the water conservation plans and geotagging of the water bodies, and also to hire expert, GIS expert, etc., which will be explained by Vidreji. We also can use it for setting up of the Jal Shakti Kendras. So if you have not done it, please send your bank account numbers immediately to the address. I'll come to that later. So, okay. This is again, third important point is, this is where slightly we are lagging, updating of the portal. Kindly note down this portal name if you have not seen it. JSACTR.MOWR.gov.in. Easy to remember. JSA is Jal Shakti Abhiyan, CTR is Catch the Rain,
So jssctr.mowr.gov.in is the portal, and portal contains information of all work done so far and the water bodies in districts. Mostly the information is from the central government funded works. There is Manrega and Amrit, etc. And the watershed works funded by the central government. But there are works done by state government budget, from the Gram Panchayat budget, from the municipal budgets, from CSR activities, from individual funding, etc. That has not been reflected. So you will have to ensure that these are also added onto the works done here. And then, as I said, there's a provision to populate the data from the state level as well as central level. So central level we are putting it up. If the district magistrates can open up your district page and see whether any data is missing or not, you can add it up. So two things: one is for the water bodies, and second is for the works. Please do that, and also do a ground truthing for the water bodies which is given. These will be used for preparation of the water conservation plans. And another important thing is that please send the photographs and also photographs and videos and information exchange through this video. I'll come to that later. So this is the work information details. Portal has a provision for updating at the local level. Kindly do that. As I said, the works done by the state budget, with the state budgets, local funds and NGOs and urban areas are missing out. So please add that also, because we are looking at the total water harvesting structures created in the country. So district collectors and SNOs may update it. They also can appoint, as I said, a person, or you take the help of DA also to do that. But ensure that the duplication of data is avoided. Login IDs and passwords have been sent to us. If you have not got it, please send it to us. We'll send it to you. You have please look in and you please join and check up. So I'll tell you the data of this is the water bodies data. We have populated data from the mobile sensors, from the water body sensors, and also from the land irrigation sensors and other information available. So if you have any data missing, please add into it, and so that we get a total information on that. Training programs have been organized by NIC. If you want further training, we can also further organize training programs for that. Now, this is the JSA portal. If you look at it, this is the information as on day. See, if you notice down below, we have as many as 160,000 photographs come from various parts of it. You have almost 900 videos. As I said, there are 31 lakh water bodies have been created. So those things are available. This is the dashboard which you can see see, if you look at it, there's only 193 Jal Shakti Kendra. This is one area where Madhya Pradesh and Assam has to pick up. Now, this is the portal of the data of the water bodies. You have photograph, you have latitude, longitude position, you have information of that, the health of the body, which Sriram Vedreji will be explaining to you later. So this is the position of Madhya Pradesh. If you notice, we have a log. Kindly notice this. We have an information of how many logins have happened in the last 24 hours, or when was the last login done. See, there are districts who have not even logged. See, some of the districts like 23, here it is Gwalior, last login happened in 23 days back. So there are some which Bhopal has logged in 55 days back. So kindly see that they are logged in and checked up what is, itna to karna chahiye na, kam se kam login to kar sakte hai. So please ensure that, but there are good districts like Agar, Malwa and all, they have logged in today. Some of them are logged in today, some of them, so we are keeping track of how many people have been logging here. Indore has logged in, Jabalpur has logged in, Katni has logged in. So please, CNO may look into this. And this is the other half of it. 36, Rewa has not logged in last 36 days. That means so palace, and there are Shardul, 47 days, not even opened up the thing. So kindly have a look at it, how to open it up if you want. This is about Assam. Assam, bahut badhiya hai. Nobody has even opened it up. This is the only state probably no DMs have opened it up, but kindly ensure that please no district. PM has sent a letter to the chief ministers. Probably, please don't ask us to send another letter from the minister side telling that this has not been done. This is probably one of the only states which has not even really logged in. So, Assam, please buck up. Please ensure that
do a district magistrate's login and see your reports, and then as I said, Jal Shakti for Jal Shakti Kendras. Basically, it's a knowledge center for information. Jal Shakti Kendra concept is to have a water resource center for you, for the collectors, because multiple data of water is available, which are not available in one single source. This would, Jal Shakti Kendra will help you, the collectors, to consolidate all water related information, and also this will be a knowledge center for all water related information. As I said, rainfall, your water table in the districts, the cropping patterns, all water related information, urban water, what is the requirement, these all can be kept in one place, and that will be the Jal Shakti Kendras. I have written a detailed report on this, you can go through that. So it will also provide technical guidance on the construction of rooftop rainwater harvesting and rainwater harvesting structures. Okay. We have also provided a common logo for easy identification throughout the country. This is the logo which we have mentioned. This is the one of the Jal Shakti Kendras of Delhi. Okay. And in Jal Shakti Kendra, if you notice, Madhya Pradesh has done 13 out of 193, and other states like Assam, also look at it, Uttar Pradesh 45, Telangana 33, all districts have been made. Andhra Pradesh, all districts have been covered. Some of the states which have not covered is Assam has not done anything, so please have a look at it. And this is some of the, as I said, awareness generation activities. Nehru Yuva Kendra people have been doing it. So please, DMs may also take up with Nehru Yuva Kendra people for awareness generation. And these IEC materials are available in this location. You can look at it. I will send this presentation to you for reference also. Okay. So these are some of the activities when Nehru Yuva Kendra is supposed to do. So my request to DMs is last two slides. Catch maximum rainwater where it falls, when it falls. Rooftop rainwater harvesting structures on buildings. Then enumerate and geotag and fix the boundaries of water bodies. Set up Jal Shakti Kendras with a common logo. Tree plantation now drive, that can also take up now. Organize Gram Sabha on 30th November to take stock. We are also planning prices for the West District, so you can still have time to catch up. We are planning the prices for the natural level area. And second important thing is preparation of water conservation plans. Your bank account, if you are not sent it, please send it to us. Open the portal, and this is the portal, jsactr.mow.gov.in. Update the works from the state, local funds and NGOs. And there is a mobile app in the Play Store, Google Play Store. Please, you can download also. It's called Jal Shakti Abhiyan, so you can take it up. And also kindly post a person, nodal office in each block in urban area assembly. Please see the mail sent from this address. You can search for this address and locate it. jsactr-nwm@gov.in. Okay, and this is. Please share your media reports and videos on JSSCTR. So that's all. These are some of the photographs of various activities which we have taken up. Meeting some of you have participated in this program, dialogue with DMs. Many of you have participated. So these are all the foundation which we did for the Jal Shakti Abhiyan campaign. So this is in Metro. This is so that's all from my side for the DMs, and I request Sriram Vedreji to take up on the water conservation plan. Good afternoon to all the district magistrates of Madhya Pradesh and Assam. Honorable Minister for Jal Shakti would be joining us in about 5 minutes. Within these 5 minutes, I just want to quickly go through the guidelines that we have set to the districts
with regards to the preparation of the GIS based water conservation plans. Next slide. Okay. So here, what I would like to emphasize is the fact all district magistrates need to look into this fact that we have to, when we want to do this campaign successfully, we got to prepare the district, block and village level water conservation plans. These should be scientific, approach should be there, GIS based technology should be adopted. Right now, most of the states, including Madhya Pradesh and Assam, you have been doing very water conservation works are being water conservation work. वो दोनों बढ़िया वाले हो गए ना? Please mute. Whoever is not speaking, please mute. Kindly request all others to mute. So basically, our request to all district magistrates is to prepare the scientific water conservation plans at district, block and village level, and two aspects need to be covered in that. One is to identify the existing water bodies, water harvesting structures that needs to be renovated and repaired. The second is planning for construction of new water bodies. Next slide. Next karo. So for preparation of scientific GIS based water conservation plans, please look into these 5 aspects. One is scientific approach, balance between supply and demand sides, ridge to valley watershed approach. There should always be a ridge to valley approach. If you do the things in bits and pieces, it's not going to have any value. Next, use the GIS based technologies. In the next slides, I'm going to show how you do this. And the 5th is convergence of all water management related departments activities. Madhya Pradesh and Assam has PHED, Water Resource Department, Forest, Panchayat Raj, Rural Development, and Groundwater Department, and various other agriculture, horticulture, various water related ministries and departments. Please converge all your activities while you plan, and while execution also you can work in sync. Now, let's talk about how you utilize the GIS and remote sensing technologies to prepare. First, two things you need to do. One is to identify and prepare an inventory of existing water bodies. जो existing water bodies हैं, water harvesting structures हैं, उसका पूरा inventory बनाइए. वो कैसे बनाने का है मैं अभी बता दूंगा आने वाले स्लाइड्स में. दूसरा, ये होने के बाद आप नया लोकेशंस में जो काम करना चाहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को, वो लोकेशंस कैसे आइडेंटिफाई करना, ये दोनों चीज आपका वाटर कंजर्वेशन प्लान्स में जरूर करने का है. नेक्स्ट, ये देखिए बेसिकली इन्वेंटरी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज. हमने एक वाटर बॉडी इधर दिखा रहे हैं. ऐसे वाटर बॉडीज आपका लाखों में होता है, हजारों में, लाखों में होता है. एक डिस्ट्रिक्ट में हजारों में होता है, स्टेट में तो लाखों में होता है. तो what you need to do is, first of all, you have Government of India portals. There is Varis, there is Bhuvan, and there is few portals that are given by National Water Mission. अशोक जी अभी बताया आपको. उस पोर्टल्स में बहुत सारे इन्वेंटरी, आपका स्टेट का इन्वेंटरी ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो काइंडली डाउनलोड corresponding your district corresponding data from those portals. That would be the data set that we are giving to you. Next, district magistrate को हम ये request कर रहे हैं, आप आपका डिस्ट्रिक्ट में GIS एक्सपर्ट को डाल दीजिए and Google Imagery software. Please note Google Imageries. This is a freely available software. ये Google Imageries यूज करते हुए आप enumerate कर सकते हैं all your water bodies को, existing water harvesting structures को. Next. So this is a Google Imagery का सॉफ्टवेयर ऐसा दिखता है. आप क्या कर सकते हैं, इफ इट इज, मैंने एग्जांपल दिखा रहा हूं इधर, मिनी पर्कुलेशन टैंक, एक तालाब.
वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो भी हो, उसका कैपेसिटी क्या है, कंडीशन क्या है, वेदर गुड कंडीशन है, रिनोवेशन की जरूरत है, ये सब आपने लेफ्ट साइड देखिए पिक्चर में, आप पूरा वाटर बॉडी का जियो टैग कर सकते हैं. लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इज व्हाट वी कॉल जियो टैगिंग. हस्तांतर, रेखांतर, जो भी बोलते हैं हिंदी में. गूगल इमेजरीज यूज करते हुए आप ये पूरा वाटर बॉडीज को इन्वेंटरी कर लीजिए पहले. नंबर 1, एक इन्वेंटरी करते समय आप अच्छा वाटर बॉडी क्या है, रिनोवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी नोट कर लीजिए. नेक्स्ट. एंड माई ये कलेक्टर्स को, डीएम्स को हमने रिक्वेस्ट भेजा था, ऑलरेडी गाइडलाइंस भेजा था. इसमें हमने ये रिक्वेस्ट किया हर डीएम को कि आपका जीआईएस एक्सपर्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, वो उनको पता है केएमजेड लेयर क्या होता है. ये केएमजेड लेयर बनता है विथ ऑल द लोकेशंस जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया, वाटर बॉडीज लोकेशंस का, उसका केएमजेड लेयर बनाइए. योर जीआईएस एक्सपर्ट वुड नो व्हाट आई एम सेइंग. ये बनाने के बाद आप ये आपका डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियर्स को एक ग्राउंड ट्रूथिंग करने के लिए, फील्ड वेरिफिकेशन करने के लिए एक केएमजेड लेयर फाइल दे दीजिए. आप अगर ये लेयर दे देंगे और डिस्ट्रिक्ट में आपका इंजीनियर्स होगा, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का, पीएचईडी का, वाटरशेड का, महात्मा गांधी नरेगा का, पंचायत राज का, रूरल डेवलपमेंट का, फॉरेस्ट का, उनको केएमजेड लेयर दे दीजिए. नेक्स्ट. और वो क्या करेगा, फील्ड वेरिफिकेशन करेगा, ग्राउंड ट्रूथिंग करेगा. वो कैसे करेंगे ग्राउंड ट्रूथिंग? एक मोबाइल ऐप हमने दे चुका है आपको. वो मोबाइल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में जाके जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन JSA-CTR टाइप कर लीजिए, आपको मोबाइल ऐप मिलेगा. वो मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए एंड आपका फील्ड इंजीनियर्स को आप ये मोबाइल ऐप दे दीजिए. और एक केएमजेड लेयर जो जीएस एक्सपर्ट आपका डिस्ट्रिक्ट में बनाया है वो दे दीजिए. डिस्ट्रिक्ट में आपका इंजीनियर्स का काम है, ये जो केएमजेड लेयर में वो जो पॉइंट्स दे चुके हैं जीएस एक्सपर्ट ने डिस्ट्रिक्ट से, फील्ड में मोबाइल ऐप लेते हुए वो जाके आइडेंटिफाई करें, फलाना विलेज में, फलाना मोहल्ला में ये वाटर बॉडी है, तालाब है, तो वो तालाब के पास जाके एक फोटो खींच लीजिए. उसका जियो टैगिंग, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, वो सब एंटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली. एंड उसका कंडीशन ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, रिनोवेशन चाहिए, रिपेयर चाहिए, तो उसका भी मोबाइल ऐप में आपको पूरा इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट. ये मोबाइल ऐप ऐसा दिखेगा आपको, उसका नाम है जल शक्ति अभियान CTR. ये मोबाइल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है. नेक्स्ट. इसमें आप 3 काम कर सकते हैं. एक तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का जियो टैग कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट वो हम आप देख रहे हैं उधर बटन. सेकंड वाला न्यू प्लान करने के लिए सेकंड मॉड्यूल पे जाएंगे आप. तीसरा एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज को आप एक बार एंटर करने के बाद फिर अपडेट भी कर सकते हैं. तो इसमें पहला वाला मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का जियो टैग करें. तो इसमें लॉगिन आईडी, पासवर्ड आप डालने के बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रूरल है, अर्बन है, डिपार्टमेंट का नाम, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का टाइप क्या है, स्ट्रक्चर का नाम, इंक्रोच्ड हो गया, नहीं हुआ, ओनरशिप किसका है, स्टोरेज कितना है, प्लान्ड स्टोरेज कितना है, प्रेजेंट स्टोरेज कितना है, इसका रिनोवेशन, रिपेयर चाहिए, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, ये सब आप एंटर करेंगे. This is where you are enumerating all your existing water harvesting structures. This is useful for you. This is useful for us. For everyone, life is made easy if you concentrate and put everything at one place. Next. ये फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं, जियो टैग फोटो भी देख रहे हैं आप. ये सब करते हुए आप अपलोड कर सकते हैं. एक बार अपलोड बटन दबाया आपने, सबमिट किया. नेक्स्ट. और एक एक डिपार्टमेंट का मैं क्विकली दिखाना चाहता हूं. फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ओपन वेल हो सकता है, ट्यूब वेल हो सकता है, फार्म पॉन्ड हो सकता है, ड्रिप, स्प्रिंकलर, हॉर्टिकल्चर जो भी हो सकता है. उसका सोर्स क्या है, फंक्शनल है, ड्राइड अप है, कैपेसिटी क्या है, एरिया इरिगेशन उसके अंतर्गत कितना होता है,
ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का नीचे देखिए टाइप ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशन, पीजोमीटर होगा, ओपन वेल होगा, वाटर टेबल 2017 में क्या रहा, 16 में क्या रहा, 2000 अभी क्या रहा, वाटर टेबल एट प्रेजेंट क्या है, वो सब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैसे पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट, वाटरशेड, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स, आपका स्ट्रक्चर हैंड पंप हो, रूफटॉप हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो, तालाब हो, एनिकट हो, लेक हो, एमआईटी हो, उसका रिनोवेशन चाहिए, डिसिल्टिंग चाहिए, प्रोबेबल कॉस्ट क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब आप मोबाइल ऐप में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो पीएचडी डिपार्टमेंट भी आपका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हैंड पंप, ओपन वेल, ट्यूब वेल, डिफंक्ट है, ऑपरेशनल है, क्वालिटी ऑफ पानी का क्वालिटी क्या है, टीडीएस, केमिकल, बायोलॉजिकल, प्रेजेंट वाटर लेवल क्या है, वो सब कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये करने के बाद आप पूरा इन्वेंटरी बनाने के बाद आप मोबाइल ऐप से अपलोड करेंगे तो हमारा पोर्टल में आ जाएगा। ये जल शक्ति अभियान का भारत सरकार का पोर्टल है, इसमें नेशनल वाटर मिशन का पोर्टल है, इसमें आ जाएगा। तो क्या होता है, आपको हमारे और आपके बीच में जो भी फैसिलिटेशन होगा, आसानी होगा, क्योंकि आपका प्रदेश में, जिले में क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, हमको पता चलता है। देन आप इन्यूमरेशन करने के बाद जो इंजीनियर्स आपको रिपेयर रिनोवेशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स के लिए मार्क किया है, उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स उसके ऊपर रिपेयर रिनोवेशन का काम शुरू करें। आप अकॉर्डिंगली आपका कन्वर्जेंस ऑफ फंड्स जो भी हो, डिपार्टमेंट्स का, स्कीम्स का, महात्मा गांधी नरेगा हो, जो भी हो, आप फंड एलोकेट कर लीजिए और आपका डिपार्टमेंट से आप रिपेयर रिनोवेशन करवाइए। नेक्स्ट, और ये लास्ट बट वन स्लाइड है, ये एक बार इन्यूमरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हो गया, रिपेयर रिनोवेशन काम आप शुरू करवाया, सेकेंड स्टेप होगा न्यू वाटर बॉडीज, न्यू वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का प्लान करना। इसके लिए पहले आप ये भी आपका जीएस एक्सपर्ट जानते हैं, काइंडली ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स प्लीज एंश्योर टू अपॉइंट अ जीएस एक्सपर्ट in your district office who can help on these things. तो इसमें वो क्या करना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है, हम आपको ये स्लाइड्स भेज देंगे। वो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज मैप्स का पूरा नेटवर्क बना देंगे, वो सैटेलाइट्स का डेटा मैंने उधर लिस्ट किया, वो एसआरटीएम हो, इसरो का कार्टोसैट हो, स्टेट रिमोट सेंसिंग एजेंसी का हो, इसरो का हो, वो ड्रेनेज मैप बनाएंगे। फिर ड्रेनेज मैप के ऊपर आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स का केएमजेड लेयर मैप करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कौन सा स्ट्रीम में ऑलरेडी आपने स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं, कौन सा स्ट्रीम में आप बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ऑन द न्यू प्लेसेस वेयर यू कैन क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्ट न्यू स्ट्रक्चर्स, वो काइंडली आपका इंजीनियर्स आप प्लान करेंगे उस स्ट्रक्चर्स के बारे में। अकॉर्डिंगली आप फंड एलोकेट करके नया स्ट्रक्चर्स को भी आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट, एंड जैसे अशोक जी ने ऑलरेडी कवर किया, जल शक्ति केंद्र आपको डिस्ट्रिक्ट में बनाइए। दिस शुड बी ए नोडल एजेंसी फॉर ऑल यूर नॉलेज सेंटर भी बनेगा, आपको पूरा सहयोगिता करेगा। टेक्निकल गाइडेंस जो भी आपको चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। डिस्ट्रिक्ट में वो नोडल एजेंसी बन सकता है जो जल शक्ति केंद्र। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट स्लाइड। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हमारा ये निवेदन है, एंड आवर रिक्वेस्ट एंड एज पर आवर गाइडलाइंस वी वुड रिक्वेस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, जो 1-2 लाख रुपया हम जल शक्ति अभियान के अंतर्गत हम दे रहे हैं, उसका उपयोग आप अपॉइंटमेंट ऑफ जीएस एक्सपर्ट के ऊपर कर लीजिए। प्लीज अपॉइंट अ जीएस एक्सपर्ट, स्पेंड योर 2 लाख रुपीज ऑन दैट पर्सन, and then identify the existing water bodies, and then take up the repair renovation works and plan for new water bodies and plan for their construction. ये सब करने के लिए आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं, मगर साइंटिफिक वे में एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ जीआईएस बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, पोर्टल यूज करते हुए और हमारा मोबाइल ऐप यूज करते हुए अगर आप करेंगे, देन आपका एफिशिएंसी स्केल ऑफ 1 to 10 में 1-2 से 8-9 तक जाएगा। With experience we are telling this, we request all district magistrates to cooperate. This is the end of the presentation. Now Honorable Minister will join us in a minute. Thank you.
Washroom again. The Honorable Minister is coming into 5 minutes. So, anything from any SNO wants to clarify? अभी बोल सकते हैं, so that before the Minister comes in. आप ही बुलाइए मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश स्टेट नोडल ऑफिसर. मगन ठीक है. Tell me. Sir, Namaskar, sir. Namaste. Sir, only two things, sir. Like KMZ layer was mentioned that it can be used for ground truthing, sir. And for sir, just like for GIS, there is a training module of 8 hours available online, sir. Similarly, if this kind of a module is available or not, if it can be made available, sir. And also a small training module on the CTRA Jal Shakti Abhiyan app, sir. Okay. If that way, sir, because sir, only one GIS expert in the district will not be able to cover so much. We will have to disseminate this app and technology at the sub-engineer level and maybe further downwards at the Gram Panchayat level, sir. That way, an online module which is easy to understand in the local language, in Hindi probably, sir, will be very useful for us to train our staff also, sir. Actually, there's a lot of cross training happening. Even the RD department, Rural Development Department also had come this dhara, no, that Yukta dhara ka bhi kiya tha, no, that something. So basically we get those information because ultimately the information is same. It's only getting ported from one portal to the other. So that's so that's what is happening. So we will give you sufficient training also. We'll arrange for the training also. We can help you in that. Okay. But kindly see that the works done by local bodies, by urban bodies, by NGOs and other are also reflected in the data, because we are looking to we are looking for the total water harvesting structures, not the Sarkari water harvesting structures. So this is a difference. No? We want all water harvesting structures to be brought in, not just. I welcome the Honorable Minister of Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat ji, for this meeting, sir. Today, sir, we have DMs of Madhya Pradesh and Assam with us, sir. So we had the initial round of presentation. So I request the Honorable Ministers to give his. No, you just carry on with the. पूरा खत्म हो गया. थोड़ा. Okay. So basically. This is before. This is a series of meetings which the minister had been holding with various district magistrates. तो हमने अभी तक 25 to 26 स्टेट्स के डीएम्स के साथ मीटिंग किया हुआ है, and इसका बहुत इतना प्रभाव पड़ा है कि we suddenly have found that lot of district magistrates and are taking very keen interest. As I said, आपको मैं दिखाया था उसमें 31 बहुत स्ट्रक्चर्स भी काफी बनाए हैं और अपडेशन ऑफ रिपोर्ट्स भी काफी चल रहा है. ऑलमोस्ट 2 लाख फोटोग्राफ्स अब तक हमारे पोर्टल में पहुंचे हुए हैं. तो माय रिक्वेस्ट इज पर्टिकुलरली स्टेट्स लाइक आसाम अभी तक थोड़ा पीछे चल रहा है, दैट यू शुड एंश्योर दैट द वर्क इज रिपोर्टेड प्रॉपर्ली एंड द Jal Shakti Kendras, which we have discussed about it, you please ensure that it is taken up. Many of the points raised by our advisor, Sriram Vedreji, if you have any clarification on that, send it to us. We will respond to you in all the details. You can get back to us on that. And the last point, as I said, we are planning to have Gram Sabha on November 13th. This is to ensure the transparency of the program. Whatever we have done it, we will present in that in a special Gram Sabha, and so that people will also know what are the structures taken up. And once the rain is over, we can go for this scientific planning, preparation of the database and the scientific planning for the next future. So the first stage of the Catch the Rain campaign or Jal Shakti Abhiyan was to ensure that maximum water is captured. So ये अभी तक नवंबर तक तो चलेंगे, and next period can be used for the preparation of the database and the planning for the water conservation. अगर हम ये करेंगे तो अपने इस financial year के अंदर मार्च के अंदर we'll be having a updated ground truth database of all the water bodies in the country, as well as a plan for taking up the structures and in the next season. So this is the background of it. So I request the Honourable Minister, Sri Gajendra Singh Shekhawat ji, to speak on.
धन्यवाद। आज इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के साथ में जुड़े हुए मिशन डायरेक्टर कैच द रेन श्री जी अशोक कुमार जी और भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार, जिनके पास में वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर एंड रिचार्ज ऑफ वाटर, इन चारों का एक लंबा अनुभव इस विषय पर काम करने का और एक सक्सेसफुल मॉडल बनाने का जिनके पास अनुभव है, ऐसे श्रीराम वेदिरे जी कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश और आसाम प्रदेश के सचिवगण और जिले के जिला कलेक्टर, जिला अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सबको, क्योंकि आप फील्ड फॉर्मेशन में फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं, कोरोना की जो आपदा आई देश भर में, दुनिया भर में बड़ी चुनौती के रूप में, आप सब ने जिस तरह से उस चुनौती का सामना किया और अपने व्यक्तिगत जीवन को खतरे में डाल करके भी कई जगह आप सब लोगों ने इस चुनौती से सामान्य मानवी का जीवन बचाने का प्रयास जिस तरह से किया, मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। और साथ ही साथ में जिस एक विषय को लेकर के पूरे विश्व भर में भारत का सम्मान बढ़ा है कि हमने न केवल वैक्सीन को डेवलप किया, अपितु पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनाइजेशन ड्राइव जो हमने किया, उसको धरातल पर साकार करने का आप सब लोगों ने जो करिश्मा करके दिखाया। अब तक लगभग 88 करोड़, अगर आज शाम तक की मैं बात करूंगा तो उस नंबर को हम क्रॉस कर चुके होंगे। और कुछ दिन में ये परिस्थिति यहां तक पहुंचेगी कि पूरी दुनिया में जितना टीकाकरण हुआ है उतना अकेले भारत में हुआ है। इस करिश्मा को करने के लिए आप लोगों ने जिस तरह का परिश्रम किया है उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। जिस विषय पर अभी या जिस बिंदु पर अभी मिशन डायरेक्टर जी अशोक कुमार जी ने अपनी चर्चा को छोड़ा, मैं वहीं से प्रारंभ करना चाहता हूं। मानसून की अगर बात करें तो इस बार थोड़ा सा मानसून अर्ली था। सामान्यतः जिन तिथियों में मानसून केरल के तट पर जो है वो हिट करता है, उससे लगभग 3 या 4 दिन पहले 3 जून को मानसून ने हिट किया था। बीच के दौर में कुछ मानसून डिफ्रैक्ट हुआ, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया से, सेंट्रल इंडिया से होता हुआ सीधा ही और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऊपर गया। लेकिन शुरुआत के महीनों में, मानसून के महीनों में वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में और नॉर्दर्न पार्ट में कुछ बारिश कम थी। लेकिन अब अगर मैं आज बात करूं तो देश के 27 राज्य ऐसे हैं जिनमें सामान्य या सामान्य से एवरेज और अबाव द एवरेज बरसात जो है वो रजिस्टर हुई है। और 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें सामान्य से कुछ कम वर्षा हुई होगी। आज जिन 2 राज्यों के, मध्य प्रदेश और असम, जिनके 2 जिलाधिकारी आज यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, असम में हर साल से डेफिसिट रेनफॉल इस साल रहा है, लगभग 23% डेफिसिट हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश का एवरेज रेनफॉल का जो है हम लगभग उसके बराबर में बरसात हमारी पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों ने अतिवृष्टि का भी जो है वो कहर इस बार भी झेला है। मॉनसून के आंकड़ों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जो वर्ल्ड वाटर डे था, उस दिन पूरे देश के सामने एक परिकल्पना रखी थी, एक नए अभियान की शुरुआत की थी, या मैं यूं कहूं कि एक अभियान को नया जो है ध्येय वाक्य दे करके, एक मोटो दे करके शुरुआत की थी। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। जल शक्ति अभियान, जैसा हम सब जानते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने देश के ऐसे सेलेक्टिव 256 डिस्ट्रिक्ट्स जो ग्राउंड वाटर की दृष्टि से वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे, या कुछ प्रदेश ऐसे जहां वो उस स्टेट स्पेसिफिक, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस पानी का है, जमीन के पानी का है,
क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी डिपेंडेबिलिटी ओवर द ग्राउंड वाटर जो है वो हाईएस्ट है। हमारी डिपेंडेबिलिटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 65% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स आर मेट आउट थ्रू द ग्राउंड वाटर। सो उस दृष्टि से जिन जिलों में सबसे ज़्यादा चुनौती थी वहां जल शक्ति अभियान 2019 में प्रारंभ किया गया था। और फॉर्मेट ये था कि भारत की सरकार से जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाव लेवल के अधिकारी यहां से गए थे, जिलाधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया था। 2019 में आप में से अगर उन कोई जिलों में अगर जिलाधिकारी होंगे तो निश्चित रूप से आपको भी अनुभव आया होगा कि उन जिलों में जो है भारत सरकार के अधिकारी गए एज नोडल ऑफिसर जाकर के उन्होंने बातचीत की और 4-5 ऐसे मुख्य विषय, वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज पे के लिए एक वायुमंडल बनाना और उसके साथ में जुड़े हुए जितनी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हैं उनको रिजुविनेट करने पे या उनको रीस्ट्रेंथन करने पे काम करना, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स नए बनाना या जो एग्जिस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको रीस्टेबलाइज करना, अफोरेस्टेशन एक्टिविटीज को बढ़ाना और साथ साथ में एक वायुमंडल इस तरह का बने, इकोसिस्टम इस तरह का बने, यूथ इसके साथ में जुड़े और ये एक सामान्य रूप से एक जन आंदोलन का विषय किस तरह से बने, इस विषय पर चर्चा करना, इस विषय पर लोगों से संवाद करना, इस दृष्टि से एक कार्यक्रम किया था। और इसके अनुभव से जिस तरह से देश भर में इस एक स्टिपुलेटेड टाइम में जिस तरह से काम हुआ, उससे प्रेरणा लेकर के, क्योंकि 2020 का साल चुनौती भरा था, कोरोना की आपदा चरम पर थी, देश के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन था या अनलॉक की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में पिछले साल में हम जिस तरह से काम फिजिकली ग्राउंड पे करना चाहते थे उसमें बैरियर्स बहुत सारे थे, हर्डल्स थे, इसलिए शायद उस तरह से नहीं हो पाए। लेकिन इस बार पिछले 2019 की सक्सेस से सीखते हुए इस बार यह तय किया गया कि देश के 700 जिलों में सभी जगह हर एक जिले में इस तरह से काम हो। हमको अब ये इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जिस तरह से स्ट्रेस हो रही है, कम हो रही है। 50 के दशक तक जहां देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता जो है वो 5000 क्यूबिक मीटर से पर कैपिटा से भी ज्यादा हुआ करती थी, वो घटते घटते अब 1500 क्यूबिक मीटर के आसपास में आ गई है। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के थ्रेट्स बढ़ रही हैं, जिस तरह से रेनफॉल्स पैटर्न बदल रहे हैं, इरेटिक एंड स्कैंटी रेनफॉल्स हो रही हैं, निश्चित ही अब चुनौती और गंभीर होती जा रही है। लेकिन इसके दूसरे पक्ष को यदि हम देखें तो दूसरा पक्ष यह है कि पानी औसत जितना 50 के दशक में आता था उतना ही आज भी मिल रहा है। वही लगभग 3000 जो है 3900 4000 बीसीएम पानी हमारे देश में 1950 के दशक में, 1940 के दशक में भी, जबकि आंकड़े प्राथमिक रूप से हमारे पास अवेलेबल है, तब भी वही परिस्थिति थी, आज भी वही परिस्थिति है। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन 2050 से लेकर के अब तक 2020 में जब हम बात कर रहे हैं 70 साल में पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो 4 गुना हो गई है, इसलिए पानी की अवेलेबिलिटी 4 गुना घट चुकी है। और ये हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन इसी अनुपात में या इससे कुछ कम होगा शायद, या कम या अधिक अनुपात में इतना ही बढ़ने वाली है, इसलिए हमारी चुनौती और भी बड़ी होने वाली। और धीरे धीरे क्योंकि हमने अपने सारे रिसोर्सेज को टैप कर लिया और जिस तरह से हम उनका दोहन कर रहे हैं, अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, यह हमारे लिए एक बड़ा संकट, चुनौती हमारे लिए सामने दिखाई दे रही है। क्योंकि इससे नीचे के स्तर पर यदि गए तो सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि 1250 क्यूबिक मीटर से नीचे यदि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी चला जाता है तो वो वाटर स्ट्रेस्ड जोन ऐसा कहलाता है। और क्लाइमेट चेंज के जिस तरह के खतरे सामने हैं उसके कारण से हमारा देश अभी मोस्ट वनरेबल कैटेगरी में के देशों में से आकर के खड़ा हुआ है। हालांकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है वो सारी दुनिया पर होने वाला है, क्योंकि आज पूरी दुनिया प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आधारित है, किसी न किसी चीज के लिए एक दूसरे पर आधारित है। चाहे वो कितना भी वाटर सिक्योर देश होगा, लेकिन उसको भी किसी न किसी तरह की चुनौती उसको भी देखनी पड़ेगी। चाहे वहां पॉपुलेशन बहुत कम होगी या इकोनॉमी बहुत बड़ी होगी, तो भी शायद उन देशों के सामने भी कुछ चुनौतियां निश्चित रूप से आने वाली हैं। लेकिन क्योंकि भारत जैसा बड़ा देश, दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश और इतना डाइवर्स देश, जहां एक तरफ असम के लोग बैठे हैं, जहां हर साल जो है बाढ़ देखने को मिलती है, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का कहर और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बाढ़ का कहर, बराक वैली और ब्रह्मपुत्र वैली की सारी नदियों का
जो है कि चुनौती उनके सामने आती होगी। और दूसरी तरफ शायद यहाँ कुछ लोग मध्य प्रदेश के ऐसे भी लोग होंगे जो बुंदेलखंड के लोग होंगे जहां पानी के एक एक बूंद की कीमत होगी। मुझे याद है जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बुंदेलखंड रीजन में उत्तर प्रदेश के हिस्से में जब हम ड्रिंकिंग वाटर का प्रोग्राम अनाउंस करने के लिए गए थे, तो वहां के सांसद ने एक कहावत बुंदेलखंड के बारे में बताई थी कि वहां महिला ये कहती है बुंदेलखंड के गांव में कि खसम मर जाइए पर गगरी न फूटे, कि मेरे हस्बैंड की चाहे डेथ हो जाए पर मटकी नहीं फूटनी चाहिए। इसे आप इस एक लोकोक्ति में पूरी जो उसका दर्द है वो समेटा हुआ है। एक लोकोक्ति में उसका पूरी जिंदगी भर का जो तकलीफ है पानी की वो उसके सामने दिखाई देती है। तो इतनी डाइवर्सिटी हमारे देश में है। एक तरफ बाढ़ का हर साल कह रहे, दूसरी तरफ मैं जिस क्षेत्र से आता हूं राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का, जहां एवरेज रेनफॉल 100-150 मिलीमीटर के आसपास होता होगा, तो 3000 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर के बीच का गैप है। इसलिए हमारी चुनौती और भी बड़ी। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है क्योंकि ये जो जिस तरह से रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हुए हैं उसके कारण से हमारी चुनौतियां बढ़ने लगी है। हमारे लिए संकट और भी बड़ा इसलिए है क्योंकि जो हमारी इस 4000 बीसीएम पानी बरसता है इसके अगेंस्ट में हमारी वाटर बियरिंग कैपेसिटी ओवर द ग्राउंड जो है वो केवल 250 बीसीएम के आसपास है। देश के सबसे बड़े बांध से लेकर के सबसे छोटे रिजर्वायर तक या सबसे छोटी वाटर बॉडी जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, उस सब का कुल मिलाकर के कैपेसिटी जो है 250 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और उसका डायनेमिक रिजर्व को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो भी कुल मिलाकर के हम 450 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को यूटिलाइज कर पाते होंगे। इसलिए हमारी डिपेंडेबिलिटी अंडरग्राउंड वाटर पर थी और धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी। मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार मुझे अवसर प्रदान किया था कि मैं देश के सारे सांसदों को मैंने जल की स्थिति, आने वाली चुनौती और वे फॉरवर्ड और हमारा उसमें क्या रोल हो सकता है बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसके लिए बात की थी। 2019 के शुरुआत के दौर की बात है। तब मैंने सारे सांसद मित्रों से ऐसे ही अनायास पूछा कि आप मुझे बता सकते हो कि देश का सबसे बड़ा रिजर्वायर कौन सा है। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बात कही। मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश का बांध बड़ा लगता था, उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश का बड़ा लगता था, उत्तराखंड वालों को टिहरी सबसे बड़ा बांध लग रहा था, साउथ के लोगों को अपने अपनी दृष्टि से सबने अपने जो है बांधों के नाम लिए। मैंने उनसे कहा कि देश में सबसे बड़ा रिजर्वायर हमारी मदर अर्थ है, जो हमारी सारी आवश्यकताओं को 65% आवश्यकताओं को पूरा करती है। और ये सारे रिजर्वायर बनाने में लाखों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हम सब लोग अगर मिलकर के ठीक से ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर काम करें और इस 4 वाटर कॉन्सेप्ट जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की है उसके ऊपर काम करें कि हर एक गिरने वाली बूंद को हम सहेजें, उसे कंजर्व करें। जो कुछ हमने वाटर हार्वेस्ट किया है, कंजर्व किया है, उसको हम ठीक से सहेजें, उसको हम जुडिशियसली उपयोग करें और उसके बाद में जो कुछ उपयोग किया है, उपयोग के बाद में जो पानी आउटपुट हुआ है एज ए ग्रे वाटर, उसको रिसाइकल करके रीयूज करें। क्योंकि हर एक बूंद जो हम बरसात की समुद्र में जाने से रोक पाते हैं, वो बूंद एक एडिशन वाटर एडिशन टू द वाटर जो है टोटल अवेलेबिलिटी में एक बूंद की एडिशन होता है। हर एक बूंद जो हम जुडिशियल उपयोग करते हुए बचाते हैं वो एक एडिशन होता है एक बूंद पानी का। और जो पानी हम खराब हुआ हुआ पानी को, जो ग्रे वाटर है, रादर मैं अब कहूंगा कि मुझे खराब हुआ हुआ शब्द पानी का उपयोग करना हम सबको बंद करना पड़ेगा। नो वाटर, नो फॉर्म ऑफ वाटर इज ए वेस्ट वाटर नाउ। जो उपयोग किया हुआ पानी है उसको अगर हम रिसाइकल करके वापस उपयोग करते हैं, दैट इक्वल्स टू 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। हर बूंद 2 बूंद पानी के बराबर है। एक हमने एडिशन किया और एक हमने सिंचाई की पानी को बचा लिया, इसलिए 2 बूंद पानी को रिप्लेनिश करती है। और आज भी हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि अगर हम ठीक से अपने वाटर साइकिल को मैनेज करें तो हम भारत में इन सब चुनौतियों को जो है अगले लंबे कई वर्षों तक पार पा सकते हैं। और जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो है इस सब का एक मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा विषय हो, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, और आप सब क्योंकि जिलाधिकारी के रूप में काम करते हैं, आप सब ने देखा होगा, इस बात को अनुभव भी किया होगा, उसको अगर समाज अपने कंधों पर ओन कर ले, समाज अपने कंधों पर धारण कर ले, समाज उसकी जिम्मेदारी ले ले, आम आदमी उसकी जिम्मेदारी ले ले, तो उस काम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी सफलता सुनिश्चित भी हो जाती है और सुगम भी हो जाती है, कन्वीनियंट भी हो जाती है और अश्योर्ड भी हो जाती है। हमको इस दृष्टि से इस सारे विषय को एक जन आंदोलन का रूप में कैसे बनाएं, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और ये कैच द रेन मूवमेंट जो है,
कैच द रेन प्रोग्राम जो है इस मोमेंटम को बिल्डअप करने की एक अपॉर्चुनिटी हमको देता है। देखिए, एक सिविल सर्वेंट के रूप में जो है आपके पास में अपने लाइफ में एज ए सिविल सर्वेंट जो सबसे बड़ा मेमोरेबल जो टाइम पीरियड होगा वो आपके एज ए डीएम जो आप काम कर रहे हो या एज ए डीसी जो काम कर रहे हो वो सबसे जिंदगी भर याद रखे जाने वाला समय होगा। और जिस जिले में आज आप डीसी की तरह काम करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, या डीसी की तरह काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, ये 2 साल आपके जीवन पर्यंत के याद किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, उस जिले के लिए भी आपको रेफर करके याद किए जाएंगे। और हर एक कालखंड में कोई ना कोई एक समय ऐसा आता है। मैं जिस जिले से आता हूं वहां टूरिज्म का बहुत बड़ा जो है सिग्निफिकेंट रोल है। जैसलमेर आप सबने सुना होगा, मैं जैसलमेर और जोधपुर दोनों को रिप्रेजेंट करता हूं लोकसभा में। हमारे यहां आज से 30 साल पहले जो कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने उस समय शहर के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो काम किया था, उसके कारण से आज जैसलमेर दुनिया के टूरिज्म मैप पर है। और उनको आज भी उसको लेकर के जब भी जैसलमेर के टूरिज्म की बात आती है, उनको निश्चित रूप से उसके लिए रेफर किया जाता है। अब वो बढ़ते बढ़ते एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की रैंक पे पहुंच गए होंगे, लेकिन आज भी उनके साथ में वो जैसलमेर का टूरिज्म का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया, उसको ग्रो किया, उसको नर्चर किया, 2 साल में इस तरह का इकोसिस्टम बना दिया कि आज भी वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और ये करने की अभी आवश्यकता भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्यों है कि एक तरफ जल जीवन मिशन प्रोग्राम चल रहा है जहां हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए हर घर तक सैचुरेट करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्वच्छ भारत मिशन काम चल रहा है जहां हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से ग्रे वाटर ट्रीटमेंट के जो है वो फैसिलिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को जिले में क्रिएट कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन चल रहा है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन की अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है कि उसकी ग्रांट जो है उसका 60% पैसा सैनिटेशन और वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए टाइड अप है, वो हमारे पास में एक एक्टिविटी है। नरेगा का बजट जो है 30-40 हजार 50 हजार करोड़ रुपए का एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ करता था। एट द एंड वो बढ़कर के इस साल का एक्सपेंडिचर के डेटा में कल ही देख रहा था, मुझे आरडी मिनिस्टर दिखा रहे थे, 1,09,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर हो चुका है। और उसका भी 65% एनआरएम एक्टिविटीज के लिए टाइड अप है कि कंपलसरीली खर्च करना है। तो ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ रुपए देश में सब लोगों के पास में मिलाकर के नरेगा की एक्टिविटी के माध्यम से भी खर्च किया जा सकता है। तो ये एक इकोसिस्टम जो हम बिल्डअप करें, इस इकोसिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट का जो हेड्स हैं जहां हम डबटेलिंग करके और ये एक काम कर सकते हैं। और ये अगर हम अपने क्षेत्र में कर पाते हैं तो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता भी हम खोलते हैं और हमारे लिए भी वर्षों तक ये जो है ये स्मरण करने योग्य काम होगा कि उस समय सिंस इट वाज एन अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम। सी आज से 2 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उस समय न तो एनआरएम के लिए 3 साल पहले रिजर्व जो है वो बाइंडिंग थी और न 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा अवेलेबल था। आज 30,000 करोड़ रुपए की अवेलेबिलिटी उसके खाते में और 65,000 1 लाख करोड़ रुपए की अवेलेबिलिटी है। एसबीएम की ग्रांट है, उसके अलावा जेजेएम की ग्रांट है। ये सब मिलाकर के पूरे देश में 1-1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट हमारे पास में इस तरह की एक्टिविटीज के, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। और सोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी और साथ में वाटर कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन सब के ऊपर फोकस है सरकार का भी, केंद्र की सरकार का भी और प्रदेशों की सरकारों का भी। आसाम के लोगों को जहां हर साल बाढ़ आती है उनको शायद लगता होगा कि पानी भी कोई सहेजने का विषय होता है क्या, वैसे ही ब्रह्मपुत्र में बहुत सारा बह हम निकाल लेंगे या लोहित में से निकालेंगे, जहां भी पानी हमारे पास हमारी नदी में अवेलेबल है। लेकिन सब जगह ऐसी परिस्थितियां नहीं है, वहां भी बहुत संकट है। पहाड़ की साथ चुनौती भी उतनी बड़ी। मैं पहाड़ को बहुत नजदीक से जानता हूं। प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच का मुझे वर्ड याद है, उन्होंने कहा था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों पहाड़ के काम नहीं आता। वो बह करके नीचे चला जाता है और जवान सारा नौकरी करने के लिए, फौज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए नीचे उतर के आ जाता है। दोनों चीजें उनके काम नहीं आती। मेघालय के चीफ मिनिस्टर या मणिपुर के चीफ मिनिस्टर या वहां के मंत्री आते हैं, वो बात करते हैं साहब पानी बरसता तो 3000 mm है, पर हमारे पास गर्मी में पानी नहीं होता। सो हम, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां हम 150 मिलीमीटर बरसात होती है। उसको भी जो है, आप में से किसी लोगों का अगर राजस्थान में जाने का अवसर मिला होगा, नहीं तो कभी अवसर मिले पश्चिमी राजस्थान में, तो मैं आग्रह करूंगा कि जरूर जाकर के देखना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां हर एक गांव की, हर एक घर की हर एक छत वो एक अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर से जुड़ी होती है। और आज से नहीं, 300-300 400-400 साल से यह विधा है। हर बरसने वाली बूंद का पानी की बूंद जो है वो सीधे उस टैंक, अंडरग्राउंड टैंक में जाकर के स्टोर होती है।
घर के लोगों की संख्या से, घर की हैसियत के हिसाब से 20,000 से लेकर के 2-3 लाख लीटर का ऐसा रिजर्वायर होता है। वो बरसात का जो पानी इकट्ठा होता है उसकी शुचिता पवित्रता की चिंता करते हैं, उसको साल भर पीने के पानी और भोजन पकाने के पानी के रूप में उपयोग होता है। साल भर की सस्टेनेबिलिटी उसी से आती है और कोई पानी का सोर्स नहीं हुआ करता था। तो हम हर एक बूंद पानी को बचाएं, उसको सहेजें, उसको कंजर्व करें। ये इकोसिस्टम बनाने का और जो है ये इस तरह का एक वायुमंडल बनाने का अवसर हमको ये कैच द रेन कॉन्सेप्ट देता है। इन सब के अलावा, इंडिविजुअल्स के अलावा जो है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग्स होंगी, चाहे आंगनवाड़ी की बिल्डिंग्स होंगी, पीएचसी की, सीएचसी की होंगी, सिटी ऑफिसेस की होंगी, उन सारी बिल्डिंग्स का छत का पानी निश्चित रूप से हमको यह प्रयास करना चाहिए कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए कि वो पानी कम से कम या तो हम एकत्रित करें, और अगर एकत्रित नहीं करें तो कम से कम वो जमीन के अंदर जाए। इसके ऊपर तो हमको वी शुड इंश्योर कि ऐसा होना चाहिए। और इस सब के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम सब लोग काम कर रहे हैं। पहले वर्षों से इसके ऊपर CGWB जो है वो पानी की खोज करता था। मैं जब 2019 में मुझे इस मंत्रालय में काम करने का अवसर मिला, मैंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को कहा कि अब तक हम पानी ढूंढने के लिए काम करते थे, अब हम पानी किस तरह से जमीन में भर सकते हैं, इस ध्येय के साथ में हमको काम करना। हमने हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के जो सबसे स्ट्रेस्ड एरिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सब का हेलीबॉर्न सर्वे कराने का एक प्रोजेक्ट लिया है। अभी 5 तारीख से इनिशिएट होने वाला है, जिसमें हेलीबॉर्न सर्वे से हम अंडर द ग्राउंड एक्विफर्स को भी मैप करेंगे और ओवर द ग्राउंड टोपोग्राफी को भी मैप करेंगे। उसको हम जो है दोनों को ओवरलैप करके कहां किस टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना है, वेदर वहां पे जो है रिचार्जिंग शाफ्ट बनानी है, वहां परकोलेशन चैम्बर्स बनाने हैं, वहां जो है सिंपली ग्राउंड पे पानी होल्ड करना है, या परमिएबल स्ट्रेटा जो है नॉन परमिएबल स्ट्रेटा पहला उसकी लेयर्स को कैसे ब्रेक करना है, इन सब का टेक्निकल एडवाइस विलेज टू विलेज हम देने वाले हैं। अभी भी हमारे पास में विलेज एक्शन प्लान होंगे। आपने विलेज वाटर सिक्योरिटी, डिस्ट्रिक्ट वाटर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स और प्लान्स बनाए होंगे, उनको हम टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ें ताकि हम बेटर रिजल्ट्स, कम एफर्ट्स में, कम खर्च में बेटर एफर्ट्स ले सकें। इसी दृष्टिकोण से ऐसे चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही आपसे जो है रेन वाटर सेंटर बनाना जिले में, इसकी अपेक्षा की गई थी। इनके साथ साथ में जो हमारी जो है ये GIS टेक्नोलॉजी बेस, हम जिस तरह की संरचनाओं को आइडेंटिफाई करें, उनके ऊपर काम करें। इस सब के साथ साथ में जो है हम किस तरह से अपने पानी की सिंचाई के पानी को, डिमांड साइड को मैनेज करने के लिए काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप सबको विचार करना चाहिए। क्योंकि हमने सप्लाई साइड के ऊपर बहुत सारी बातें की है, हमने बहुत सारा काम भी किया है। पानी कहां से आ सकता है, लिफ्ट, पहले पानी हम जो है कुएं से निकालते थे, फिर ट्यूबवेल्स की टेक्नोलॉजी आई, उससे निकालना शुरू किया, बांध बनाना शुरू किया, बांध से ग्रेविटी से लाते थे, फिर लिफ्ट करके पानी लाना शुरू किया, हमने इंटरबेसिन ट्रांसफर शुरू कर दिया, हमने टनल्स बना करके अक्रॉस द माउंटेन्स हम पानी ले जाने लग गए। लेकिन सप्लाई साइड की लिमिटेशन है, उसकी जो है हम मैक्सिमम लेवल तक, ऑप्टिमम लेवल तक लगभग पहुंच चुके हैं। अब हमारी आवश्यकताएं क्या है कि हम जो हमारे पास में अवेलेबल है उसको हम इफिशिएंटली कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करें। हमको इसके ऊपर भी लीड लेकर के ऐसे जो है सक्सेसफुल मॉडल्स अपने जिले में खड़े करने चाहिए, तो कि हम इरिगेशन में वाटर का मिनिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और साथ साथ में रिसाइकलिंग पे कैसे काम करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस अभियान से अब तक जो काम हुआ है उसमें देश भर में 6,67,000 6,60,000 ऑलमोस्ट 68,000 जो है ऐसे वाटर कंजर्वेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए हैं, और लगभग 1,20,000 जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी उनके रिस्टोरेशन का काम किया है। 7 लाख के आसपास जो है वाटरशेड के विकास की, वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो इनिशिएट हुई है। देश भर में 6 लाख गांव है और 7 लाख जगह एक्टिविटीज हुई है। अगर मैं एवरेज आउट करूं, हो सकता है कि हर जिले में नहीं हुआ होगा, कुछ जगह हुआ होगा, कहीं अपॉर्चुनिटीज होंगी, कहीं कमिटमेंट होगा, लेकिन एवरेज पर डिस्ट्रिक्ट एक जगह वाटरशेड का काम हो रहा है। और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में एक जगह काम हो रहा है। हर गांव में जो है लगभग एक जगह हमने वाटर रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड एक्टिविटी पे भी किसी न किसी तरह का काम किया है। निश्चित रूप से जब ये आंकड़े, कंसोलिडेटेड आंकड़े में देखता हूं तो मुझे ओवरवेलमिंग लगते हैं, लेकिन जब आप धरातल पर काम करते हो तो आपको गैप्स एनालाइज होते हैं कि इस गांव में मल्टीप्लाई हो गया, इस गांव में सरपंच ने, ग्राम पंचायत ने, गांव के प्रधान ने, मुखिया ने, विलेज वाटर कमेटी ने उसके ऊपर काम किया होगा,
इफिशिएंटली काम किया, इस पंचायत में 20 काम हो गए, लेकिन 20 ऐसी पंचायतें जहां काम नहीं हुआ। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, सब जगह इस पर काम कैसे करें, इस पर निश्चित रूप से आप सबका फोकस होना चाहिए। हमने फुट सोल्जर्स के रूप में इस काम के साथ में नेहरू युवक केंद्र को जोड़ा है। हमने उनके साथ में टाई अप किया, एमओयू किया, उनको हमने कुछ रिएम्बर्समेंट किए और उनको फाइनेंशियल इंसेंटिवाइजेशन उनको किया। और आपको निश्चित रूप से आप अपने जिले में अपने नेहरू युवक केंद्र के कोऑर्डिनेटर जो है उसको बुला करके बात करें। देश में 2,27,00,000 लोग इसके साथ में जुड़े हैं। कितनी बड़ी टीम फिजिकली ग्राउंड पर काम करने के लिए आपके पास में अवेलेबल है। हमने कुछ छोटा छोटा इंसेंटिव भी आपको दिया है और वो सिर्फ उसका परिप्रेक्ष्य इतना ही था कि जो है आप अपने यहां पर एक छोटी सी टीम इन 3-4 महीनों के लिए हायर कर पाए, किसी एक्सपर्ट को हायर कर पाए, अपना रेंज सेंटर ठीक ठाक से चल सके, उसके लिए कोई छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। हालांकि मैं जानता हूं कि एक कलेक्टर के लिए अगर कमिटमेंट उसका हो और उसकी मानसिकता हो करने की, तो जो है रिसोर्सेज कभी चुनौती नहीं होते, कभी चुनौती नहीं हो सकती रिसोर्सेज एक जिलाधिकारी के लिए। वो अगर चाहे और उसका कमिटमेंट हो और करने के लिए कन्विक्शन हो तो जो रिसोर्सेज की कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने छोटा सा ग्रांट इसके लिए रखा और साथ में एक अपेक्षा आप सबसे भी इसके लिए भी की थी कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं हम वाटर बॉडीज को जियो टैग करें। देखिए अल्टीमेटली अब हम, जैसा मैंने आपको कहा कि हम वल्नरेबल सोसाइटी बन गए, देश बन गए। So to manage our resources, the primary and the first most thing is to know our resources. We even don't know, we have no repository of water resources what we are having in the country. Water being a state subject, we were not even having the information about the tier 2, tier 3 level और छोटे लेवल के reservoirs and dams का कोई repository भारत सरकार में होता ही नहीं था। जब हमने स्टेट से मांगा, you'll be surprised, सम ऑफ योर कोलीग्स, जब हमने स्टेट से मांगा था, स्टेट्स में जो है स्टेट के सेक्रेटरीज ने जब पूरे देश के डेटा मुझे दिए थे, मैंने उसमें से कुछ डेटा को लॉग इन किया। कई बार तो मुझे पैसिफिक ओशन में मिले थे। तो वो जियो कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आए थे कि उनके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं थी। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि हम ऑथेंटिकेटेड वेरीफाइड, सी आज टेक्नोलॉजी की जमाना इतना आगे बढ़ गया है, हम एक बार अगर हमारे पास में जियो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो हम उन एसेट्स को आने वाले टाइम में ठीक से मैनेज कर सकेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत अपने बचपन में ऐसी नदियां देखी होंगी जो कभी नाले बहते थे, कभी साल में 8 महीने 10 महीने तक रिवलेट्स बहते थे, आज गायब हो गई होंगी। और धीरे धीरे अगर एक आपने 10-20 साल तक हमने उनको नहीं संभाला तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो एनक्रोच हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि तमिलनाडु में, चेन्नई में जो है शहर में 3000 वाटर टैंक्स थे जो जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन आने वाले समय में आज जो कुछ बचा हुआ है इसको बचा के रखने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं? हमको उस जिम्मेदारी को ओन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। आपके लैंड रिकॉर्ड्स के साथ में आप एक छोटे अधिकारी को, एक नायब तहसीलदार को लगाइए, जिले के तहसीलदार को लगाइए कि जिले में जितनी वाटर बॉडीज हैं उसको, उसके साथ में उसके कैचमेंट को लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ में ओवरलैप करके देखे कि वो एग्जिस्टिंग में कितना, क्या उसकी पोजीशन है और हम उसमें से कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। हियर आई विश टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। उन्होंने आइडेंटिफाई किया, बुंदेलखंड में 10,000 टैंक्स थे, आज उन्होंने कम से कम 2,000 टैंक्स को रिवाइव किया है, उनके कैचमेंट को रिस्टोर किया एंड जो है उनका एंक्रोचमेंट को हटाया। आज वो पानी भर गए तो जमीन में पानी अपने आप होने लगा। एंड ये बात हमको समझना पड़ेगा, सबको इस बात को समझाना भी पड़ेगा। All the water sources are interconnected. देखिए जमीन में पानी होगा तो सतह पे पानी इकट्ठा होगा, सतह पे पानी इकट्ठा होगा तो जमीन में पानी होगा, जमीन में पानी होगा तो नदी में पानी होगा। आज नदियां सूख गई, छोटे छोटे नाले सूख गए, उसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसके पानी आना बंद हो गया, क्योंकि जमीन में पानी नहीं है इसलिए पानी जमीन के अंदर चला जाता है, पानी बचता नहीं है। तो मैं आपसे सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि हमको एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में इस सब के लिए काम करने की अपॉर्चुनिटी इस कैच द रेन कैंपेन से मिलती है। मध्य प्रदेश राज्य ने कुल मिलाकर के जो है इस दृष्टिकोण से ठीक काम किया। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश दैट 75,000 वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज पर उन्होंने, वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर उन्होंने काम किया है, जिसमें चेक डैम्स भी हो सकते हैं, तालाब भी हो सकते हैं, टैंक्स भी हो सकते हैं, छत पे या छत के पानी को रोकने की जो है अवसंरचनाएं भी हो सकती हैं। लेकिन अगर दूसरे एंड पर मैं देखूं तो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज के रिस्टोरेशन पर अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने कहा कि देश भर में 1,07,000 जगह काम हुआ है, मध्य प्रदेश में केवल 2,000 जगह काम हुआ है, लेस देन 2,000।
So here it is a point of introspection that why 2000 only? The state like Madhya Pradesh having a one of the largest geographical span in the country and having so many stressed areas, why these activities are limited up to 2000 only? हमारे देश में प्रदेश में जहां मैंने कहा कि हर पंचायत में एक एक्टिविटी हुई है, मध्य प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं उनके तुलना में हम केवल 2000 जगह काम कर पाए. So it gives an opportunity to introspect. मैं आप सब लोगों को I don't want to stress out, but मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूं कि इस पे हमको विचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ कहाँ गैप रह गया और मिशन डायरेक्टर को इसमें गंभीरता से जो है इसका फीडबैक भी लेना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत भी करना चाहिए. हमने प्लांटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज पे किया है. असम में भी जो है वो लगभग 6700 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स या वाटर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए गए. Assam again having the largest geographical span in the northeastern states, उनको भी निश्चित रूप से इस पे काम करने की आवश्यकता है. मैं सब जिलाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इसमें एक साथ जो है एंगेज करके और उसके साथ में जितने अवेलेबल फंड्स हैं उनको हम सब डबल करके और एक साथ सारे इसको जोड़ करके हम कैसे इस तरह का एक जो है एक वायुमंडल का निर्माण करें कि ये कैच द रेन सक्सेसफुली हो. और ये जो बज अभी क्रिएट हुआ है, ये बज केवल इन 3 महीने के लिए नहीं रहे, आने वाले 6 महीने तक हम अगले साल के काम के लिए तैयारी करें. उसके लिए हम कर सकते हैं कि अपने यहाँ पे हम ड्रोन्स बेस्ड सर्वे करा दें, जो ज्यादा जो स्ट्रेस्ड एरियाज हैं, ज्यादा क्रिटिकल एरियाज हैं या ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इन एरियाज में, वहां हम ड्रोन बेस्ड सर्वे करा दें. वहां हम जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है डेटा जो मिला है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने यहाँ के प्लान बना दें, जियोस्पेशियल डेटा लेकर के हम उसके हिसाब से प्लान बना दें ताकि आने वाले समय में हम और भी ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकें. जल शक्ति अभियान में जो है आप सब लोग पूरी ताकत के साथ में जुटे हैं और जुटेंगे. और मैं ये मानता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव अभी चल रहा है, 75वां साल चल रहा है. आपके और मेरे जीवन में 75वां साल बहुत बड़ा समय हो सकता है कि आदमी अपने जीवन के 3 पड़ाव पूरे कर लेता है, चौथे पड़ाव की तरफ वानप्रस्थ की तरफ प्रस्थान करता है. आइडियली ऐसा हम सब मानते हैं. देश के लिए 75 साल बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा समय है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करके देखें कि हम किस चीज में कहां से प्रारंभ हुए थे, आज कहां पहुंचे, पानी की अवेलेबिलिटी में कहां थे और आज कहां खड़े. और हमको इस कमिटमेंट के साथ में काम करना चाहिए कि जब आजादी की शताब्दी पूरी करेंगे तब तक हम देश को वाटर जो है अबंडेंस वाला देश ऐसा बना सकेंगे. हमारे साथ में आजाद हुआ था इजराइल में आज जो है 100 मिलीमीटर बरसात होते हुए भी वो दुनिया में एकमात्र देश है जो वाटर एक्सपोर्ट कर रहा है पीने का, जॉर्डन और सीरिया को. उन्होंने इतना इफिशिएंट मैनेजमेंट किया है. हमको भी उस जो है मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ऊपर काम करना पड़ेगा. और मैं ये मानता हूं कि ये जो 4 वाटर कंसेप्ट जो है ये जिसके बारे में आदरणीय वैद्य साहब ने आप सबसे चर्चा की होगी, और मैं क्योंकि साक्षी हूं जब राजस्थान में इस तरह का काम किया था और जिस सफलता के साथ में काम किया था, आप सब लोगों को शायद वो एक केस स्टडी है पढ़ने लायक. कभी कहूंगा कि श्रीराम वैद्य जी आपसे बात करेंगे. चीफ मिनिस्टर से लेकर के जो है एक गांव के एक वार्ड पंच तक और चीफ सेक्रेटरी से लेकर के छोटे से छोटे कर्मचारी तक सब लोग इक्वली इन्वॉल्व हुए थे. सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया था. जो पैसा दे सकता था वो पैसा दे रहा था, जो संसाधन दे सकता था वो संसाधन दे रहा था, जो और कुछ नहीं दे पा रहा था वो कुल्हाड़ी लेकर वो अपना जो है फावड़ा तगारी लेकर के वो काम कर रहा था. पूरा प्रदेश एक साथ जुटा. तो राजस्थान जैसे क्रिटिकल स्टेट में भी हमने वाटर टेबल जो गिरने का ट्रेंड था उसको रिवर्स कर दिया. अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है. तो आप सब लोग इस तरह से जुटेंगे. इस सद्भावना के साथ में मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं एक बार फिर, और आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने काम किया है. लेकिन हम काम करते करते साथ में आगे और अधिक इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम सबको विचार करना चाहिए. आप लोग करते भी होंगे. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. थैंक यू सर. थैंक्स फॉर द इंस्पिरेशनल एड्रेस सर. सर ने पूरे वाटर के पूरे पहलू के बारे में डिस्कस किया था. Now, probably interaction करेंगे. So, I hope that all of you would be noted the points the Honourable Minister has said. He had actually laid the plan for the next future also, and then also you reminded of your role as a district magistrate, where you will be remembered for the work you did in the water in your term. So this is a very, very inspirational thing, sir, and I thank for the Minister for putting the entire thing in perspective. He covered the demand side management, he covered about the supply side management,
and also the minute storage of water issues associated with that. Thank you, sir. So now we have some more time. Honorable Minister will be with us. So if any of you have any issues to raise, you can raise it. Or if you have done any good work with good models which can be shared, that can be shared. So I request now the floor is open for the district magistrates to talk from their experience, or if they have any clarifications which can be taken up. It's open for you. Madhya Pradesh, can you start with? Anyone, if you want to submit something, any success story which can inspire the others who are present today's workshop, or any gap or any hurdle which you are facing working on the ground.
with the collectors and the DMs and have inspired them. And there is a tremendous increase in the data reporting and the work done in the last 2-3 months where when the FinSA started a review. So I hope that you will also upload the photographs and videos of the good work which you have done. Thanks a lot once again. चलिए भैया धन्यवाद